السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نعیم احمد اپنے یوٹیوب چینل باخبر بروقت سے جن حالات کی میں نے نشاندہی کی تھی تقریباً آلموسٹ وہ ہو چکے ہیں، اور جو نئی پوزیشن آنے والے چند دنوں میں بننے والی ہے جو نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے جی 7,000 روپے میں پیور کینچی ٹوک مال بکنے کے امکانات ہیں، جبکہ 2,15,000 میں بلٹ بکنے کے امکانات ہیں اور 2,40,000 میں سریا بکنے کے امکانات ہیں۔ اب مجھے یہ نظر آ رہا ہے، سوال اکثر دوست کرتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں، سب سوالوں کا میں جواب تو نہیں دے سکتا، لیکن کچھ دکاندار کہتے ہیں اگر یہی حالات رہے تو پھر دکاندار جو ہے نا وہ کافی پریشان ہو جائیں گے، ٹھیک ہوں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مافیا کی وجہ سے ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات بتاؤں، جو کام کو سمجھتا ہے نا، ٹوٹل کام کو سمجھتا ہے، گراس روٹ لیول سے لے کے آخری مل تک، تو وہ ان چیزوں پہ بلیو اس وقت کرتا ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مافیا کا چکر ہے یا یہ جینون مہنگائی ہے یا یہ کوئی دو نمبری ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کو پچھلے تقریباً 20 دن سے کم از کم 20 دن سے کہہ رہا ہوں، بلکہ دسمبر سے میں نے کہنا شروع کیا تھا کہ جی دسمبر گرم ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد پھر تھوڑا سا مارکیٹ میں 2-3 دن کے لیے اتار چڑھاؤ آیا، اس کے باوجود میں نے آپ لوگوں کو سٹینڈ کیا کہ نہیں بھائی حالات جو ہیں آنے والے دنوں میں یہ بن سکتے ہیں۔ تو مجھے تو سارا جو کچھ تھا وہ نظر آ رہا تھا، مجھے اس میں مافیا کا کردار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر کہیں بھی 1% بھی مجھے شک ہو جاتا کہ اس میں مافیا جو کی انوالومنٹ ہے تو میں نے یقیناً آپ لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کر دینا تھا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا رہا کہ آپ جو مرضی کریں، گاہک ہو یا نہ ہو، مال بکے یا نہ بکے، پیسے آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں، ریٹ بڑھیں گے، کیونکہ میں مسلسل جو ڈالر کے ساتھ کیا جا رہا تھا اور جو ایل سی نہ کھلنے کی وجہ سے، اگر آج سے کوئی 15-20 دن پہلے، مہینہ پہلے ایل سی کھل جاتی تو شاید جو ڈالر اس وقت اس سطح پہ ہے اس وقت اتنا نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ جتنی مال کی تڑپ آج لوگوں کو ہے سکریپ کی، شاید اتنی تڑپ خام مال کی نہ ہوتی۔ تو آہستہ آہستہ بھوک بڑھتی رہی، پیاس بڑھتی رہی، تو اس کے بعد جب بندے کا برا حال ہو جاتا ہے، مرنے والا ہو جاتا ہے، بہت پیاس لگی ہوتی ہے، تو پھر وہ یہ نہیں کرتا کہ 1 گلاس پی لوں، 2 گلاس پی لوں، وہ 5 پی لے، 6 پی لے، 7 بھی پی لے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، کیونکہ وہ پیاسا ہوتا ہے، تو بس وہ پی جاتا ہے چاہے اس کا پیٹ خراب ہو جائے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ حالات جو ہیں یہ جینون حالات ہیں، آنے والے دنوں میں مزید مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ مشکلات میں اس لیے کہتا ہوں کہ گاہک کا ذہن بننے میں ٹائم لگے گا، خدا نخواستہ ادارے بند ہونے کے چانسز ہیں، جب مال ختم ہو جائیں گے تو آخر میں کمانا تو انہوں نے ہی ہے جن کے پاس سرمایہ ہے، جن کے پاس ہولڈنگ پاور ہے، جن کے پاس مال پڑا ہوگا، جو فرنسیں یا اپنے ادارے فیکٹریاں نہیں بند کریں گے تو پھر کمائی تو انہوں نے ہی کرنی ہے، لیکن مہنگائی تو پھر بھی ہونی ہے۔ سکریپ کی کچھ ہو سکتا ہے 19-20 ہو جائے، سکریپ تھوڑا نیچے آ جائے کہ جب سب ادارے بند ہوں گے، لیکن تیار مالوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی، یہ بار بار میں دہرا رہا ہوں۔ لیکن یار اگر آپ لوگ اجازت دیں، اگر آپ کسی قسم کا کسی سے کینہ نہ رکھتے ہوں، اور اگر آپ کے اندر حوصلہ ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، کیسے ہوا ہے، کس نے کیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، کون لوگ یہ کر رہے ہیں، تو یار انسان کو دل بڑا رکھنا چاہیے، احتساب انسان کو اپنی ذات سے کرنا چاہیے، اور انسان کو اپنے اصل دشمن یا وہ کردار جو آج آپ کو اس نیج پہ لے آئے ہیں ان کو تلاش کرنا، ان کی نشاندہی کرنا، ان کو بے نقاب کرنا، یہ ضروری ہے۔ اگر کوستے رہیں گے جناب مافیا مافیا، فیکٹری والے، فرنس والے، فلانے یہ اس طرح کرتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، یہ زیادتی کرتے ہیں، تو یہ بالکل ایک قسم کی غیر منصفانہ جو ہے نا وہ آپ کی رائے ہوگی۔ میں بتاتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا، اس کے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے قرض اتارو ملک سنوارو کا نعرہ لگایا، اس کے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے کہا سب سے پہلے پاکستان، اس کے ذمہ دار کون ہیں کہ ہم ایشین ٹائگر بنا دیں گے، اس کے ذمہ دار کون ہیں بھٹو زندہ ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں بی بی شہید ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں کہ اب ہم پاکستان کو
एशिया का जो है ना टाइगर बनाएंगे। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने नारा लगा दिया कि जनाब नया पाकिस्तान। अब जब नया पाकिस्तान ख़त्म हुआ तो फिर जनाब एक और नारा लगा, एक बारी फिर। बात ये है, इन सब चीज़ों का नतीजा निकाल लें। मैंने इसलिए कहा इसके ज़िम्मेदार कौन है, इसके ज़िम्मेदार कौन है, तो आपने बिल्कुल यकीनन आपने इन लोगों को ज़िम्मेदार बना दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत, बिल्कुल ये गलत है। इसकी ज़िम्मेदार बेहिस मुर्दा ज़मीर अवाम है, जिनके जिनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं ना, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। जिनको नहीं नज़र आता कि पिछले 70 साल से जो लोग हुक्मरान रहे हैं आज तक, उनमें वो कौन थे जिन्होंने लूटा, इनमें वो कौन थे जिन्होंने जायदादें बनाई, इनमें कौन थे जो मुल्क से भागे, इनमें कौन था जिन्होंने आज तक अपने सूबे में बदहाली के अलावा कुछ नहीं दिया। इसके ज़िम्मेदार कौन है जो हुकूमतें बदलते हैं, इसके ज़िम्मेदार कौन है। ये सारा कुछ होता रहा मगर बेहिस और मुर्दा ज़मीर अवाम सोती रही। तो जनाब अपने गिरेबान में मुंह डालें ना, अपना गिरेबान झांकें कि क्या हम इसके ज़िम्मेदार हैं। आप इसी तरह घरों में सुकून से प्यार से बैठे रहें, लूटने वाले आपको लूटते रहेंगे। जिनको आप माफिया कहते हैं, ये माफिया कोई माफिया नहीं है, ये वो लोग हैं जो इन हुक्मरानों के साथी होते हैं, इनकी हुक्मरानियों में इनका साथ देते हैं, और बाद में जब इनकी हुकूमतें आती हैं तो फिर वो मुल्क को दोनों हाथों से लूटते हैं। कोई चोरी करता है बिजली, कोई चोरी करता है गैस, कोई पैसा बनाता है। किसी को असम्बलियों में पता होता है, किसी को सेनेट में पता होता है मुल्क के क्या हालात होने वाले हैं, हालात किधर जा सकते हैं, हालात कैसे जाएंगे, ये पैसा कैसे बनाएंगे, ये लूटेंगे कैसे, और वो अपने मिशन में मुकम्मल कामयाब हैं। और जब भी कोई आप लोगों में कोई थोड़ा सा बेदार होता है, गफलत से बेदार होता है, तो फिर ये लोग मीठी नींद आपको इस तरह सुलाते हैं, छड्डो जी लानत पाओ, असी की लैना, असी दिहाड़ीदार बंदे हाँ, सीधे दिहाड़ी लानी है, ठीक है, सानू तो जान दे लाले पे ने, साडे ते घर दा चूल्हा बंद है, ये बाहर निकलना, इख्तजाज करना, हड़तालें करना, बोलना, कुछ करना, ये हमारे बस की कहाँ बात है जी। मैं तो अपने बच्चों की रोटी पूरी नहीं कर सकता जनाब, मैं बाहर कैसे निकलूँ। तो भाई नहीं निकल सकते तो खाओ छितर, खाओ लितर। कहो हुक्मरानों को, उनको कहो कि जनाब लितर खाने के लिए तैयार हैं, कैबन बताओ, तुसी बंदे मारन वाले होर बताओ, असी बिल्कुल नहीं जागना, सुते रहना है, सोना है, आराम करना है, सुकून करना है, करें। ये वो हालात हैं भाईजान, इससे बदतर हालात होने वाले हैं। ये 7,000 स्क्रैप का रेट दिया, सुबह को मांगना ना शुरू कर दे। ये आने वाले दिनों की बात है, ये कब होगा कैसे होगा। ये 7,000 स्क्रैप का रेट भी हो सकता है और ये रेट दोबारा रिवर्स हो गया 5,000 भी हो सकता है, 5500 भी हो सकता है। जब आपका फर्नेसें ही बंद हो जाएंगी, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, किसी को माल नहीं मिलेगा, किसी का माल नहीं बिकेगा, किसी में सख्त नहीं होगी, किसी में होल्डिंग पावर नहीं होगी, किसी को बिल के लाले पड़े होंगे, कारोबार उस तरीके से नहीं होगा, उस तरीके से पेमेंट नहीं आएगी, गाहक इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो क्या करेंगे जनाब। जब माल नहीं बिकेगा तो आराम से बैठ जाएंगे। बहरहाल तैयार माल जब वो आराम से बैठ जाएंगे, फर्नेस से बंद कर देंगे, माल तो उनका बाद में भी बिक जाएगा और महंगे रेट में बिक जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको निशानदेही कर रहा हूँ, स्क्रैप वालों को मैं कह रहा हूँ, ये इनमें कोई व्यापारी होता है, कोई दुकानदार होता है, कोई छोटे दुकानदार होते हैं, इनमें सख्त नहीं है कि ये इतनी बड़ी मार बर्दाश्त करें कि मार्केट एकदम ऊपर और एकदम 500-700 हज़ार रुपये टन नीचे मर जाएंगे सारे ही। लिहाजा स्क्रैप वालों को तो मैं हमेशा कहता हूँ साथ साथ अपनी स्क्रैप सेल करते रहें, लालच में ना पड़े। जहाँ तक बात रहेगी बिलेट की, बिलेट ऑब्वियसली बढ़ेगा। आज बिलेट का रेट 2,08,000 रुपये तक चला गया था। जिन लोगों ने 2,25,000 रुपये सुबह सरिया बेचा है, वो रात को 2,30,000 रुपये भी नहीं बेच रहे थे, वो कह रहे थे नहीं माल सेल करना। उनकी तो चांदी है, हो जाएगी, उनका जैक लग जाएगा। फर्नेस से बंद होने की सूरत में, मिलने बंद होने की सूरत में, यहाँ चलने की सूरत में, क्योंकि अगर चलती नहीं तो माल ऑब्वियसली ये स्क्रैप महंगा होता रहेगा और उनका खाना ख़राब होता रहेगा, गाहक आए या ना आए। अभी पेट्रोल की सूरत हाल आपने सुनी है, वो 70-80 रुपये की उन्होंने समरी भेज दिया, पता नहीं वो 30 पे मंजूर होती है, 25 पे होती है, 20 पे होती है। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल कम हो रहा है और इधर महंगा हो रहा है। सोए रहो, बेदार नहीं होना, सोए रहना है,
सोए रहना है, कोई माँ की गोद में सो जाए जाके, कोई बेगम के जो है ना चरणों में बैठा रहे, बस यही काम करने हैं। रोटी 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 की फिक्र करो, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने हकूक़ के लिए, बिल्कुल अपने ज़मीर बेदार नहीं करना। और बाद में रोते रहो जी ये माफिया ने किया, ये फलाने ने किया, ये फलाने ने किया। क्योंकि हम लोगों को चोर चोर नज़र नहीं आते, करप्ट करप्ट नज़र नहीं आते, गद्दार गद्दार नज़र नहीं आते। तो जो कौमें सोई रहती हैं ना, उनके मुकद्दर में जलालत के अलावा कुछ नहीं है। और जो कौम भी बेदार हुई है, वो जैसे भी बेदार हुई है, और आज हिस्ट्री में उनका नाम देख लें, वो हमेशा तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हुई हैं, उन्होंने तरक्की की है और उनका एक नाम बना है। जर्मन बहुत, पाकिस्तान से बाद में जर्मन उजड़ गया था, बर्बाद हो गया था, उन लोगों ने घास खाई थी, लेकिन वो कौम एक हो गई थी, तुर्की एक कौम बन गई थी। ये सब कुछ देखते जाएं। ये अगयार के जो यार हैं ना, जो उनकी गोदों में बैठ के फैसले करते हैं, फैसले लेते हैं, उनके मनपसंद के काम करते हैं, तो फिर उनको आपकी कोई परवाह नहीं है। डॉलर ऊपर जा रहा है ना, आप मर रहे हैं महंगाई में, आपको तकलीफ आ रही है, आप ये सोचते हैं सरमायादार को तकलीफ है। जिनके पास बहुत लंबा चौड़ा जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े लोग हैं, जिनके अरबों खरबों रुपए बैंकों में है, क्या वो कमज़ोर हो गए हैं? और भाई डॉलरों में उनकी पेमेंट, वो डॉलरों में पेमेंट रखते हैं। आपका रुपया कमज़ोर हो रहा है, उनके डॉलर स्ट्रांग हो रहे हैं, तो होएं। लिहाजा ये सारी बातें, ये सब के सवालों का जवाब है। क्या होगा, क्या बनेगा, कैसे होगा, हमारा बुरा हाल है, गाहक नहीं आएगा, मर जाएंगे, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। भैया काम ये जो हो रहा है आपके साथ कम हो रहा है, इससे बुरा होना चाहिए, इससे भी बुरा होना चाहिए। 10 का अंडा 15 का हो गया था, क़यामत आ गई थी, आज 28 का ले रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। 10 का नान 12 का हो गया था, सारी दुनिया बर्बाद हो गई थी, मर गई थी, उजड़ गई थी, आज वो 25 का भी नहीं मिल रहा। अगर मिल भी रहा है तो उसका वजन कम हो गया, कोई टेंशन नहीं। आटा 60 रुपए किलो मिल रहा था, बहुत ज़बरदस्त महंगाई थी, आज आटा 100 कुछ रुपए हो गया, 250 को हाथ लगा दे, टेंशन नहीं लेनी भैया। दालें जो आज से पहले 100 रुपए किलो थी, वो 200 होगी, 200 वाली 400 होगी, 400 वाली 600 होगी, हर चीज़ बढ़ गई है। लेकिन नहीं, आपने सोना है, क्योंकि आप सोने से मुराद आपका ज़मीर सोते रहना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जागने की तो जगह ही नहीं है, ये तो सोने की जगह है। ठीक है, इधर भी सोए रहें तो पता नहीं इसके बाद क्या बनेगा, वो अल्लाह बेहतर जानता है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। लिहाजा ना अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र करें, ना रिश्तेदारों की करें, ना भाइयों के लिए परेशान हो, ना माओं के लिए परेशान हो, ना बहनों के लिए परेशान हो, किसी के लिए परेशान नहीं होना। आपने सोना है, तनकीद करनी है। मैं भी मैं ये कर रहा हूँ ना, बहुत से लोग कमेंट्स में जाके देख लीजिएगा, बहुत से लोग सियासतदान आ जाएंगे, बहुत बातें करेंगे, लेकिन मेरा सारा मुद्दा सिर्फ ये, मेरा मुद्दा भी कोई सियासी सूसी नहीं था, मेरा मुद्दा सिर्फ ये था, कारोबारी मुद्दा था। भैया आप लोग तरक्की नहीं कर सकते, आप लोगों ने जलील होना है, परेशान होना है, तंग होना है उस वक़्त तक जब तक आप बेदार नहीं होंगे। मैंने आज से पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, दोबारा भी कह रहा हूँ, इस मुल्क का वाहिद एक हल है। कल तक जो कहते थे ये जैली असम्बली है, तो अब भी जैली है ना। कल तक जो लोग कह रहे थे इलेक्शन करवाओ, आज भी तो वही है ना। इसमें क्या राय है? अगर कल तक कोई किसी को बदनाम कर रहा था, किसी को खलाई मखलूक कह रहा था, आज कोई दूसरा कह रहा है, तो सारे मिल बैठ के फैसला क्यों नहीं करते जी? कभी मैंने कहा था खलाई मखलूक, तूने कहा ये, फलाना कह रहा है, वो कोई कह रहा है एस्टैब्लिशमेंट, कोई कुछ कह रहा है, कह रहे हैं ना सारे, तो एका कर लो सारे, बैठो असम्बली बैठ के कानून पास कर दो। नहीं, जिसके मुंह में फीडर जाएगा ना, जिसके वो पैम्पर बदलेंगे, जिनको वो गोद में बिठाएगा, वो नारे लगाएंगे। तो भैया आप जलील हो, अभी आप निकल जाएंगे, बाद में कोई और आ जाएगा, वो सिलेक्टेड हो जाएगा, ये इलेक्टेड हो जाएगा, वो सिलेक्टेड हो जाएगा, तो वो सबको खिला रहे हैं। तो खेलते रहो, अवाम का कोई चक्कर नहीं है, पाकिस्तान का कोई चक्कर नहीं है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कोई फ़िक्र नहीं है, और किसी को भी नहीं है, मेरे समेत किसी को भी नहीं है। सब सोए रहें, आराम से बैठें, अल्लाह आप सबको खुश रखे, और सिर्फ रोते रहें, चलाते रहें। ठीक है, अपनी तकलीफ़ का इजहार नहीं करना, और अपनी तकलीफ़ के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना, इलाज नहीं कराना, चीखना है बस। चीखो, तो यह आपके मुकद्दर में अब चीखना रह गया है, तो चीखो, इसके मज़े लो। एडवांस आपको बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई होगी, मज़ीद महंगाई का तूफ़ान आएगा। पेट्रोल मैं कह रहा हूँ महंगा होगा, आज से 15 दिन का लगा होगा महंगा। ठीक है, आलमी मार्केट में सस्ता होगा, यहाँ में महंगा होगा। डॉलर का रेट कुछ भी नहीं है भैया, अभी पता नहीं 300 को जाके टच करना है।
बिजली के रेट कुछ भी नहीं है अभी उन्होंने बढ़ना है, गैस के रेट कुछ भी नहीं है अभी उन्होंने बढ़ना है, दालें बहुत महंगी, रमज़ान में देख लेना दालों का क्या हाल होगा, जो दालें एलसीओ से खुलेंगी कुछ भी नहीं होना। यहाँ इस मुल्क का हाल कुछ भी नहीं है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासर है, दुआएं करें। और आखिर में एक बात मैं आपको बता दूं, ये अक्सर लोग मेरे साथ बहस करते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं, कोई बातें करते हैं। आज मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, मैंने उसको भी बताया था, मैंने उसको ये बताया था, भैया आप लोग कहते हैं पाकिस्तान सलामत रहेगा ता क़यामत रहेगा, कि ये किसकी दुआ नहीं है? कौन दुआ नहीं करता? हर बंदा ये दुआ करता है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, पूरा पाकिस्तान करता है। लेकिन मुझे ये बताएं 1947 में कौन सा पाकिस्तान बना था? कौन सा पाकिस्तान बना था? रमज़ान मुबारक में कौन सा पाकिस्तान बना था? लैलतुल कद्र में कौन सा पाकिस्तान बना था? कैसा था वो पाकिस्तान? क्या उस पाकिस्तान में बांग्लादेश शामिल नहीं था? हमारा बाजू कट गया, हम तो अपना बाजू नहीं संभाल सके। कश्मीर तो हमें मिला ही नहीं था, कश्मीर तो शुरू से डिस्प्यूटेड है, वो तो शुरू से मकबूजा कश्मीर है। जो लैलतुल कद्र को आपको तोहफा मिला था वो बांग्लादेश नहीं था। अपना बाजू कटवाने के बाद पाकिस्तान सलामत रहेगा। जो हालात बन रहे हैं, मेरे मुंह में खाक, दुश्मन की ये ख्वाहिश पूरी ना हो। अगर कल को पाकिस्तान को कुछ और हो गया, कोई और हिस्सा कट गया, पाकिस्तान सलामत रहेगा। चाहे पाकिस्तान जो है ना लाहौर रह जाए या फैसलाबाद रह जाए या कोई जो रह जाएगा, वो पाकिस्तान सलामत रहेगा क़यामत तक। और अल्लाह के बंदो, चाहते हो कुछ तो बजाय इसके कि नीचे कोई कमेंट्स लिखे तारीफ़ के, कोई कहे वाह जी वाह, कोई कहे वेरी गुड, कोई कहे एक्सीलेंट, कोई कहे थम, छोड़ो इन बातों को। और कोई तनकीद करे, अपने आप को बेदार करो। अपना हकूक़ लेना, अपना हकूक़ छीनना, अपने हक़ के लिए लड़ो, अपने हक़ के लिए लड़ो। ये मेरे नबी की सुन्नत है, अपने हक़ के लिए लड़ो, अपना हक़ छीनो। मजलूम बन के बैठे रहोगे, गूंगे बहरे बैठे रहोगे, कुछ नहीं मिलना। जूते छितर लितर जलालत के अलावा कुछ नहीं। आप भी मकरूज हैं, मुबारक हो। आपकी औलाद भी मकरूज है, मुबारक हो। आपकी आने वाली नस्लें जो आएंगी वो भी इसी तरह रहेंगी, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया है, जिस कौम ने अपनी हालत आप बदलने का ख्याल नहीं ना किया, अल्लाह भी उसकी हालत नहीं बदलता। अल्लाह भी उसको ही हिदायत देता है, उसको ही तौफीक देता है, उसको ही कामयाबी देता है जो फ़िक्र करता है। जिसको खौफ है ना खुदा का, जन्नत में वही जाएगा। और जो बंदा 5 वक़्त का नमाजी हाफ़िज़ कुरान हो, उसके बाद ज़िक्र करता हो, उसके बाद हज उम्रे करता हो, हर साल आता हो जाता हो, सदका खरात ज़कात सब कुछ करता हो, अगर वो ये सोचेगा ना कि मैं अपने अमाल की वजह से बख्शा जाऊँगा, बख्शा वो भी नहीं जाएगा। लेकिन ये सारा कुछ करने वाला, और अल्लाह ना करे इसे कुछ भी नहीं किसी ने अगर किया होगा, ये करना चाहिए, फ़राइज़ जो हैं उनको पूरा करना चाहिए। लेकिन वो अगर नहीं भी करेगा ना, खुदा ना खास्ता को कमी कुताही रह भी जाएगी उसमें, लेकिन उसके दिल में अगर खुदा का खौफ हुआ कि मैं जालिम हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, अगर उसके अंदर ये खौफ हुआ कि क़यामत वाले दिन मैंने सामने पेश होकर क्या जवाब देना है, तो शायद कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाए। शायद नहीं, यकीनन बन जाएगी, क्योंकि उसके दिल में खौफ खुदा था। तो पाकिस्तान के नारे लगाने से, जिंदाबाद करने से, तराने सुनने से ये पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है। पाकिस्तान से मोहब्बत करनी है तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए तमाम बंदे अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हों। कोई दयानतदार हुकूमत आए जिसे आप समझते हैं कि ये दयानतदार हुकूमत है, आपके ज़िम्मे जो टैक्स के वाजिबात हैं वो टैक्स अदा करें, पाकिस्तान को कुछ दें। पाकिस्तान ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया है, अब आपकी बारी है पाकिस्तान को देने के लिए। नहीं तो टैक्स तो वो आपसे इससे भी कई गुना ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। और अपने आप को बेदार करें, अपने हकूक़ के लिए निकलें, बोलें, आवाज़ उठाएं, अपने आप को बेदार करें। बस यही आज कहना था। क्या रेट बताऊं, क्या रेट नहीं बताऊं, रेट जो भी हैं वो आपके सामने ही है। अभी तक सब हलचल मची हुई है। सुबह 220 का कोई दे रहा था, उसके बाद 225 मांगने लग गए, फिर सेल बंद कर दी। स्क्रैप की पोजीशन 100 रुपया जो है ना आज यूनियन ने बढ़ा दिया है, और ब्लैक में वो 200 से भी महंगी बिक रही है, 100 रुपया भी महंगी बिक रही है। जिसका जो दाल लग रहा है वो कर रहा है, जो ज़रूरतमंद है वो ख़रीदता जा रहा है, जिसको पता है मैं होल्ड कर सकता हूँ 4 दिन बाद बेचूंगा वो ख़रीदता जा रहा है, बाकी सब परेशान है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करें, अपनी दुआ में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।